हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि हम लोग 10th ICSE ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे हैं और दिस इज ऑनलाइन लेक्चर नंबर 16 एंड दिस इज द न्यू चैप्टर व्हिच इज लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर बुक। सो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस chapter. So now start with the linear in equation. In equations means in which there is not a equal term, not an equal term, but here the term will be greater than, less than equals to, or greater than equals to. For example, x and y are two quantities, then x greater than y can be possible, x less than y can be possible, x greater than equals to y possible, or x less than equals to positive. So basically these are inequations. These are inequations in which we use, these are the inequation in which we use symbol greater than equals to, less than equals to. ठीक है? So these are the linear equations. Linear inequations. Inequations means in which we use these symbols. Now linear inequation in one variable means, let us write it here, x plus 8 greater than 2, x plus 8 greater than 2. This is a linear equation because x has power 1. This is in equation because the symbol greater than is used here. This is in one variable because only x is there. So this is a linear inequation in one variable. Or we can write y minus 2 greater than equals to 9. This is a linear inequation in one variable. 2z plus 8 less than 9. This is a linear inequation in one variable. This is आप इसको कैसे पढ़ेंगे? This is read as twice the z added to 8 less than 9. y minus 2 greater than equals to 9. x plus 8 greater than 2. So this is a linear equation in one variable. Why? Because only y variable is used. One variable having a power 1, linear or greater than equals to in equation. This is a variable z having power 1. This is one variable, linear and less than in equation. So this is a linear in equation in one variable. So this is about the chapter name. जो chapter हमें बोल रहा है actually वो है क्या? So now to solve these questions, इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी मस्ट रिमेंबर सम ऑफ द रूल्स. हमें कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे. मैं सिंपल आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, इफ 2x is equal to 4 then find the value of x. So x can be found by 4 by 2. So this multiply 2 will be divided over there, so that will give you the answer x equals to 2. This is the answer which is the value of the variable. So this is the value of the variable. Similar way we solve inequations, but some rules we must learn here to know about linear inequations or to solve these equations properly. So now let us discuss about the rules. The number one rule, if we are having x plus 2 greater than 8 or x plus 2 less than 8 or x plus 2 less than equals to 8 or x plus 2 less than now this is greater than equals to 8. So हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन है, we need to find the value of x. तो हम क्या करेंगे? We can shift the constant term to right hand side. So when we shift the constant term, the sign will be changed. तो साइन क्या होगा? चेंज होगा. लेट्स से यहाँ पे माइनस है बेटा, तो क्या होगा? 8 plus 2. अगर प्लस की टर्म है उस तरफ जाके माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की टर्म है दूसरी तरफ जाके प्लस की हो जाएगी, जैसे सिंपल इक्वेशंस में भी होता है. 2x plus 8, 2x is equal to 8 minus 2. So हम यहाँ पे भी यही करते हैं बेटा, 2 plus 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? minus 2 हो जाएगा. 2x minus 2 equals to 8. So क्या होता है? minus 2 उधर जाके plus 2 हो जाएगा. So these are the two rules. This is the number one in which the plus term will go to the right hand side, the sign will be converted into negative, and here the minus term will go to the right hand side and sign will change to plus 2. Now if I talk about third rule, बेटा आप इसको number 1 बोल लीजिए, इसको number 2 बोल लीजिए, doesn't matter, but you need to learn about some basic concepts of linear inequations in one variable. So now हमारे पास है 2x greater than 8, 2x greater than 8. So if I add 2 both sides, 2x plus 2 plus 2, add
टू बोथ साइड, देयर विल बी नो चेंज इन इक्वेशन, सिर्फ +2 होगा और साइन एज इट इज रहेगा ग्रेटर देन लेस देन का। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं 2x - 2 8 - 2, 2x - 2 8 - 2 will become 6, so we can easily solve this। तो हम लोग इन सिंपली कोई भी टर्म को ऐड या कोई भी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ साइड्स बेटा इन लीनियर इन इक्वेशंस। नाउ नंबर 3, you can multiply or divide by any constant 2x into 2 like in this greater than 8 into 2, so you can multiply any constant both sides, you can divide by any constant both sides, there will be no change in equation, so x greater than 4, the sign can be greater than, less than equals to, greater than equals to, there will be no change in equation। So now come to the next point, so next point is a very important topic। मान लेते हैं x ग्रेटर देन y है और x और y दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, इफ यू रेसिप्रोकलेट देन इनइक्वालिटी रिवर्स, तो इनइक्वालिटी क्या कर जाती है रिवर्स। फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल 2 इज ग्रेटर देन -2, 2 is greater than, sorry, both are positive, either both are positive, either both are or both are negative, 2 greater than 1, if I take reciprocal, obviously this will be 1/2, this will be 1/1, so 1/2 क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा बेटा, 1/2 छोटा ही होगा, obviously this is 0.5, this is 1, so if both the terms on right and left hand side are positive terms, if you take the reciprocal of that then inequality reverse, और अगर दोनों नेगेटिव होती तब भी इनइक्वालिटी क्या होनी थी रिवर्स, बट दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। नाउ नंबर 6 पॉइंट, अगर आपको मान लेते हैं x ग्रेटर देन y है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई, कोई भी माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड, देन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल आई टेक -x लेस देन -y, इफ आई मल्टीप्लाई बाय -x माइनस बोथ साइड देन इनइक्वालिटी रिवर्स। आप पूछेंगे सर हमें क्या जरूरत है, हम क्यों करें, लेट अस से फॉर एग्जांपल हमारे पास -x ग्रेटर देन 2 है, अगर हमारे पास -x = 2 होता है तो हम कैसे लिख देते हैं, x = -2 लिख देते हैं, x = -2 आंसर, दिस इज करेक्ट वन। बट यहां पे हमारे पास -x greater than 2 है, आई कांट राइट इट एज x greater than -2, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, सो इन दैट केस आई नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव साइड, तो दोनों तरफ मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड रिवर्स द इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना पड़ेगा, सो इट विल बी x less than -2, so this is false, x greater than -2, but this is correct। So according to these rules there will be a true and falses, तो जैसे मैं ट्रू फॉल्स बना देता हूं, यहाँ पे -x greater than 2 है और उसने दे दिया इफ दिस -x is greater than 2 then x is greater than -2, कि माइनस ही उधर चला गया, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, बच्चे बोलेंगे सर ट्रू है, कि सर माइनस ही उधर गया, वी कैन सेंड द माइनस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, बट नॉट इन इनइक्वालिटी, इफ इनइक्वालिटी you multiply by a negative term, this is like you multiply negative term both side, because यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, तो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव, आपने हमेशा ऐसे ही लेना है, जब भी साइन चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा तो आपने हमेशा ऐसे ही लेना है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय या डिवाइड बाय बोथ साइड्स, तो इन दैट केस यू नीड टू नीड टू चेंज द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, तो आपको ग्रेटर देन को लेस देन करना पड़ेगा, लेस देन को ग्रेटर देन करना पड़ेगा। So these are all about the rules. So let's say मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसी से रिलेटेड जो अभी हमने किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास है -x+2, मैं अभी इसके रिलेटेड आपको एग्जांपल्स सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। देखिए सारे इसमें रूल कोशिश करूंगा यूज करने के लिए। सबसे पहले मैं 2 को उधर भेजूंगा बेटा, -2x greater than 4 - 2, आपको बोला था अगर प्लस वाली टर्म उस तरफ जाएगी तो उसका साइन क्या होगा बेटा, ये +2 उधर जाके 8 - 2 हो जाएगा, तो मैंने 2 को उधर भेजा, 4 - 2 हो गया, दिस इज 2। आई कैन डिवाइड बाय, आई कैन मल्टीप्लाई बाय एनी वेरिएबल, सो डिवाइड बाय 2 हियर, डिवाइड बाय 2, सो -2x डिवाइडेड बाय 2, 2/2, आई कैन डिवाइड बाय एनी constant term, I can multiply by any constant term, sign will not change, so this will be cutting out to -x greater than 1, so if you multiply, because this is -x greater than 1, हमें वैल्यू निकालनी है x की, -x की नहीं निकालनी, so in this case I need to multiply negative sign both side, so multiply by, we cannot shift minus directly to the right hand side, so multiply both sides by -1, so -1 या माइनस से सिर्फ हम मल्टीप्लाई करेंगे,
So this is minus of minus x. Inequality will reverse. So x less than -1 will be the answer over here. So ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इक्वेशंस और इन इक्वेशंस में ज्यादा डिफरेंस शो करता है. बाकी ये सारी चीजें तो बेटा इन इक्वेशंस और इक्वेशंस में सिमिलर ही होती हैं. These are the basic concepts. This is you need to actually understand this point. So now these are the rules. So now let us discuss about some more things about it. So here the what is the actually replacement set or solution set. दो सेट आते हैं इसमें, replacement set and solution set. बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है? रिप्लेसमेंट सेट होता है एक मेन सेट जिसमें से वेरिएबल की वैल्यू को चूज किया जाता है. रिप्लेसमेंट सेट इज अ मेन सेट फ्रॉम विच वैल्यू ऑफ एक्स इज चूजन. तो जिसमें से एक्स की वैल्यू को चूज किया जाता है. मतलब रिप्लेसमेंट सेट एक मेन सेट होता है. जैसे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एक्चुअल में एक्स की जो वैल्यूज है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है. तो नेचुरल नंबर इज अ replacement set. Natural number is a replacement set. And what is the solution set? Solution set. The solution set is a subset of replacement set. Solution set is subset of replacement set. What is this subset of replacement set mean? Subset मतलब part of that set. Subset मतलब सब part, subset set का आगे part. तो मतलब replacement solution set में कोई भी वैल्यूज हो सकती है. Let's say this is 1 2 3 4. This is the subset of natural number. Natural number में क्या होता है बेटा? Natural number में 1 2 3 4 5 up to infinite. Infinite मतलब चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता. So these are the basically representation of set. ये आपने ICSE में पढ़ा है ऑलरेडी. तो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है. So ये हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट है which is showing a natural number, और ये इसका solution set है which is showing some elements of natural number. मतलब this is a subset of replacement set. तो ये हमेशा क्या होता है? सबसेट होता है रिप्लेसमेंट सेट का. सो रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट आपको समझा दिया. इसके अलावा कुछ और एग्जांपल दे देता हूं रिप्लेसमेंट सेट की. दिस इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन x बिलोंग्स टू होल नंबर इज अ रिप्लेसमेंट सेट. होल नंबर में क्या होता है बेटा? दिस इज अ होल नंबर. तो होल नंबर्स क्या होंगे? 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. सो यहां पे क्या आएगा? कर्ली ब्रैकेट आएगा हमारे पास. देन x बिलोंग्स टू third one is x belongs to z or i. Z or i is the representation of integer. Z लिखो, i लिखो, और integers belong करता है. तो x is equal to integers क्या होते हैं? -4 dash 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 मतलब up to minus infinity. -3 -2 -1 0 1 2 3. These are the basically up to infinity. So ये z और i के लिए हम लोग यूज करते हैं. z और i मतलब integers के लिए हम लोग इस तरह से x का इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज द रिप्लेसमेंट सेट ऑफ होल नंबर. तो इसका सबसेट क्या हो सकता है बेटा? सबसेट में कोई भी एलिमेंट 0 1 2 3, तो कोई भी 2 या 3 एलिमेंट हो सकते हैं. दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ होल नंबर. सो यहां पे हमारे पास मान लेते हैं कि हमने सॉल्यूशन सेट बनाया है इसका कोई भी, और सॉल्यूशन सेट के अंदर क्या होगा? -2 -1 0 1. सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ z और i. so ये उसका रिप्लेसमेंट सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं इंटीजर्स के, और दिस इज अ सॉल्यूशन सेट जिसमें कोई भी वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं ये वैल्यू सॉल्यूशन सेट की, बट इट इज अ सबसेट ऑफ ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट सेट. सो इसके अलावा अगर रियल नंबर्स के लिए हम लोग देखें, रियल नंबर हमें पता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो रियल नंबर तो बेटा दुनिया का हर नंबर, कोई भी नंबर बोल लीजिए वो रियल नंबर है. सो इन दिस केस हाउ वी राइट एक्चुअली x सच दैट x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर. इसका सबसेट लिखना हो बेटा तो ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन सेट. और x मान लो रियल नंबर, यहां पे मैंने बोल दिया x ग्रेटर देन 6. ग्रेटर देन 6 मतलब 6 से बड़े सारे नंबर. तो 6.1 6.111 6.11112 6.13. सो वो x ग्रेटर देन 6 सारे क्या होंगे? इसके सॉल्यूशन सेट है. ये क्या है हमारे पास? रिप्लेसमेंट सेट. और ये क्या है हमारे पास? उसका सॉल्यूशन सेट होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो यहाँ पे आपको कुछ रीड करने के लिए अगर चीजें दी जाए, यू कैन हाउ यू कैन रीड दैट आई वांट टू टेल यू. दिस इज ax plus b greater than equals to c. ax plus b greater than c. ax plus b less than c. ax plus b less than equals to c. So you can read it as
ax plus b greater than equals to, अगर मुंह इस तरफ को खुला है, जो आप पहले बोल रहे हो अगर उसकी तरफ मुंह खुला है तो ग्रेटर देन होता है, जो आप पहले बोल रहे हो जो उसकी तरफ मुंह होता है वो ग्रेटर देन होता है, जो आप पहले बोल रहे हो अगर साइन दूसरी तरफ खुला हो तो लेस देन हो जाता है, जो आप पहले बोल रहे हो अगर साइन दूसरी तरफ हो तो वो लेस देन हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर इक्वेशन in equations in one variable. So in next lecture I will discuss exercise 4a of your book and some questions may be interchange कि कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ एक बुक में ना हो, सेकंड बुक में हो सकते हैं, but basic concept is same बेटा. So thank you so much.